Very good afternoon to all. I am Anju Misra. Today we will discuss the Vedic period and later Vedic periods. So let's start. Vedic period में हम देखेंगे कि what are the sources to know about the Vedic era, what is the scope of Vedic era, what is the other characteristic like political, economical and social characteristic of Vedic era. So when we talk about the Vedic era sources, so there are so many type of sources जिनके मीडियम से हम वैदिक एरा के बारे में जानते हैं. So first, just like a literary sources like Vedas and our epics. The second one is so many are archaeological sources, iron and pottery, brief comparative study of early and later Vedic society and economy. Today we will discuss in this video. Vedic era को first of all we divide into two parts. The number one is early Vedic period and number two is later Vedic period. Here I mentioned this. The period when we Aryan first settles in India is known as the early Vedic period. In early Vedic period, basically the period between the time period of 1500 to 1000 BC and the period between 1000 BC to 500 BC when Aryan developed their society in India, that's called later Vedic periods. When we talk about the Vedic period, so again here we can see that the Vedic period divided into basically two parts. The first one is Vedic period or early Vedic period we can say. The second one is later Vedic period. जो टोटल टाइम पीरियड था वो 1500 BC to 1600 BC. BC is before Christ. So when we divide Vedic era into two parts, the one is early Vedic period, then early Vedic period, the time period was 1500 BC to 1000 BC. It means 1500 BC से 1000 BC का जो time period है, that's called early Vedic period. Then the initial characteristic about Vedic period day by day become more rich, more mature. Then that period will called later Vedic period, that in the era comes in 1000 BC to 500 BC. It's clear what is the time period of Vedic period and what is the time period of later Vedic period. Now we will discuss about sources to know our Vedic era. As the Vedic era, the Ved meaning होता है वेद का. Ved means to know, जानना, knowledge. On the basis there are four Vedas: Rigved, Yajurved, Samved and Atharved. The right sequence is Rigved, Samved, Yajurved and Atharved. The first, when we talk about the Rig Veda, the main information about early Vedic era we found from Rigved. लेटर वैदिक पीरियड की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है वो आगे के यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से हमको मिलती हैं. सोर्सेस कई सारे हैं, जैसे कि ऋग्वेद जो वेद हैं हमारे, वो स्वयं एक हमारे लिटरेरी सोर्स हैं जिनसे हमें उस समय के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ट्रेड एंड कॉमर्स न अदर ईच एंड एवरीथिंग की जो भी उस समय जो भी सोसाइटी में डेवलपमेंट था, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट क्यों ना हो, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमें हमारे उस समय के लिटरेरी सोर्स जो है वो किससे मिलती है, वो वेदों से मिलती है. सो वेदास कम्स इन लिटरेरी सोर्स and there are four Vedas we know. The second important source to know about the Vedic period, that is आर्कियोलॉजिकल पीरियड. आर्कियोलॉजी से कई सारी हमारे जैसे कि लिटरेचर में वेदास हैं, एपिक्स हैं और आर्कियोलॉजिकल में आयरन है, पॉटरी है. वी नो इन 1000 BC में आयरन जो है वो इन्वेंट हो गया था. उसके बाद बहुत तेज़ी से वैदिक के बाद लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस ने बहुत तेज़ी से स्प्रेड किया था. उसका मेन एक रीज़न था आयरन. तो जहाँ से आयरन हमें इस वैदिक एरा में मिलता है, वहाँ से हम देखते हैं कि तेज़ी से बहुत ज़्यादा इन्वेंशन मिला है, बहुत शार्प जो हैं वो यूटेंसिल्स और बहुत शार्प वेपन्स मिले हैं वैदिक एरा में. लेटर वैदिक पीरियड में वो आफ्टर 1000 BC की बात है. इट मीन्स दैट्स कम्स इन लेटर वैदिक पीरियड.
So here it is clear there are sources, two sources we are discussing here. The number one is literary source, that is Vedas, epics, Brahman Granth, Upanishad, so many are. The second one is archaeological, that is iron and pottery, जो भी उस समय से मिली है उससे हमें वैदिक एरा की जानकारी मिलती है. लिटरेरी सोर्स में वैदिक और एपिक्स को, वेदास और एपिक्स को हम रखते हैं. लिटरेरी सोर्स, द वैदिक टेक्स्ट आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड groups, namely the early Vedic text and the later Vedic text. As I earlier mentioned, the early Vedic text जो था वो ऋग्वेदा से मिलता है और आगे के 3 वेद जो हैं वो लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड हैं. द टर्म वेदा इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद विच मीन्स अ नॉलेज. वैदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, श्रुति एंड स्मृति. श्रुति क्या होता था? जिन चीज़ों को हम याद करके रखते थे, जैसे ऋग्वेद को श्रुति में रखा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथों को श्रुति में रखा जाता है. इट मीन्स वेदों को जो पाठ किया करता है, उनको लिखते थे, और वो लोग एक उस समय, क्योंकि लिपि वगैरह का आर्यंस को नॉलेज नहीं था, तो वो अपनी जो उनकी नॉलेज थी उसको अगेन वो क्या करते थे कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को उसको प्रोनाउंस कर दिया करता था. देन सेकंड वन थर्ड को, इस तरह से 1 जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन में जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र का मीडियम जो था दैट वाज Shruti. That's why it's called Shruti. The second one is Smriti. The Smriti means they memorize the knowledge about Vedas. Whatever written in Vedas, they just memorize that. And the first generation to second, third and fourth, second, third, fourth generation में वो उसके on the basis of memory they transfer the knowledge about Vedas. That's why the second later Vedic period we found so many things of like this. When we discuss about the Vedas, the Rig Veda, it is the oldest religious text in the world, hence called is the first testament of mankind. जितना भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो डेवलपमेंट था, दैट वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडियन रेफरेंस. देन अगेन हमने जीरो से स्टार्ट किया वैदिक एरा में. वैदिक एरा में अगेन जीरो से वही ग्रामीण संस्कृति वगैरह देखने को मिलती है. उसके बाद जो वेदास में जो ऋग्वेद वाज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड. इट वाज कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड. इट कंटेन हाइम्स डेडिकेटेड टू सेजेस to the god. It contains the famous Gayatri mantra. We know that there are 10 chapters, there are 10 mandal in Rig Veda. Then the Gayatri mantra that is written by the Vishwamitra found in the 3rd mandal of Rig Veda. Samved, as we know, there is a Sat Swar. There are 7 letters in Indian music system. That is Sama means sweet song, melody. These hymns and are sung by the priest at the time of sacrifices. जो समय के प्रीस्ट वगैरह होते थे, जो उस समय यज्ञ वगैरह में आहुति देने के लिए जिन मंत्रों का उच्चारण करते थे, और जो 7 स्वरों का वर्णन मिलता है, इंडियन म्यूज़िक सिस्टम का जनक जो फाउंडर है वो भी सामवेदा को माना जाता है. द थर्ड वन इज़ यजुर्वेदा. यजुर्वेद सारे वेदों में इसलिए अलग है क्योंकि ये गद्य और पद्य रिटन फॉर्म में और पोइट्री फॉर्म में, दोनों फॉर्म में हमको देखने को मिलता है. द फोर्थ वन इज़ अथर्ववेदा. अथर्ववेदा इट डील्स विथ मैजिक एंड चार्म. उस समय तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसी चीज़ें भी ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस थी, जिसका फर्स्ट जो हमें सोर्स मिलता है वी फाउंड इन अथर्ववेदा. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रही व्हाट वाज द मेन सोर्स एंड मेन टॉपिक ऑफ आवर वेदा. सो ऋग्वेद, यजुर्वेद, द नंबर वन इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. द नेक्स्ट वन इज ब्राह्मण ग्रंथ. व्हाट वाज द ब्राह्मण ग्रंथ? व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्राह्मण ग्रंथ वी फाउंड दैट to spread the knowledge of Vedas to common people in very easy language, that's explanation of Vedas returns in Brahman Granth. जो भी एक सामान्य भाषा में वेदों के नॉलेज को समझाने के लिए उसे ब्राह्मण ग्रंथों में समझाया गया था. आरण्यक इस फॉरेस्ट बुक. जो ऋषि मुनि होते थे वो पर्वतों पहाड़ों पर जाते थे, लंबे समय तक तपस्या करने के बाद जो नॉलेज उनको प्राप्त होता था, उस नॉलेज को जो लिखा गया है, जिस उस फिलॉसफी को, इंडिया की हमारे जो ऋषि मुनियों की जो फिलॉसफी जिस चीज़ में लिखी गई है, दैट कम्स इन आर्यन. सो देयर आर 4 वेदास, Brahman Granth and Aranyak. All are the
all are the literary source to know about the Vedic period. The next one is Upanishad. They are the philosophical thought of the sages on soul, God, ultimate truth, karma, moksha and maya. It is the foundation on which the later Vedic literature रेस्ट। उपनिषद जो हैं, उपनिषद वेदों का अंत हैं। वेदों के लास्ट टाइम के पीरियड की नॉलेज को बताने के लिए उपनिषद लिए गए हैं। इसमें फिलोसफिकल थॉट हैं वेदों के, और अलग अलग ऋषि मुनियों के थॉट वेदों के अंत में जो नॉलेज दिया गया उसमें उसको इसमें बताया गया है, और अल्टीमेट ट्रुथ, कर्म, मोक्ष और माया के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। द नेक्स्ट वन इज एपिक। Importance of epics: it gives the information about social, cultural and political life of the people of this epic age, and it gives information about the various kingdom, their armies and weapons used by them. जो भी उस समय के राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा का कॉन्सेप्ट जो बाद में जो कबीला हुआ करता था, कबीले का जो हेड हुआ करता था, उसकी जो आर्मी हुआ करती थी, जिस वेपन्स के बारे में, इन सारी चीज़ों की जो सोर्सेस है हमें एपिक्स से मिलता है। एपिक्स रिवील द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली इन इंडिया। वी नो द फैमिली इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली, सो एपिक्स से हमें उस चीज़ की जानकारी मिलती है। द इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ दैट पीरियड दैट वॉज अ भगवद गीता एक्सप्लेन कर्मा एंड इमॉर्टेलिटी ऑफ द सोल। जो द वर्क इज वर्शिप कॉन्सेप्ट हम सोचते हैं कि टुडे वी डिस्कस ओवर इन वेरी साइंटिफिक मैनर ऑन द टॉपिक ऑफ कर्मा दैट डिराइव फ्रॉम द इंडियन बेसिक ओल्ड literature, that was Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita we found very renowned principle, that is the principle of karma. When we talk about the other archaeological sources, we can again divided it into iron and pottery. As I earlier mentioned that we found iron in 1000 BC. Then आयरन के इन्वेंट होने के बाद जो भी पॉटरी मिली है उससे भी हमें उस समय की एज का पता चलता है। द डिस्कवरी ऑफ आयरन मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। आयरन के फाउंड होने के बाद जो भारतीय सभ्यता थी उसका तेज़ी से विकास होता है। बहुत तेज़ी से आर्यंस जो हैं वो अपना बहुत तेज़ी से विस्तार करते हैं। एग्रीकल्चर बहुत बड़ी मात्रा में होने लग जाता है, और उसके लिए जंगलों को साफ़ करना, एरिया को बढ़ाना बहुत इजी हो जाता है। ऑक्यूपेशन और डिफेंस के डेवलपमेंट में भी जो आयरन का इन्वेंशन है 1000 BC में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर सोर्स टू नो अबाउट द वैदिक एरा, दैट इज़ पॉटरी। Pottery forms an important source of information, that is GW. उस पर जो पॉटरी मिली है उस समय की, दैट इज़ ग्रे वेयर एंड PGW। ये एक बार यूपीएससी में पूछा गया है, व्हाट इज़ ये जो वैदिक एरा में और लेटर वैदिक एरा में जो पॉटरी मिली है वो उस पर किस चीज़ का प्रयोग किया गया, दैट इज़ PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। पॉटरी वॉज डिस्कवर्ड इन डिफरेंट साइट्स। PGW is a very fine, smooth and even colored pottery. It was made of high quality of clay with geometrical pattern painted on it in black. Few had floral pattern on it, and pottery includes open mouth ball and dishes. बहुत सारी जो pottery मिली है that is colored by the painted grey ware, बहुत सारे colors का उसमें यूज़ किया गया है, बहुत सारी geometrical design और painting का उसमें यूज़ किया गया है। Then when we talk about the social life of Vedic period, so here to know about the Vedic and later Vedic period we divided into 4 parts. The number one is social life, social part and social characteristic of that period, and political characteristic of that period, Vedic era, and economic and religious part of that time periods. When we talk about the social life, then joint family system was prevalent in the Vedic period. The Grahapati was the head of the family and man responsible for the family. वैदिक एरा में हम जानते हैं सोसाइटी जो थी पैट्रियार्कल थी, पितृ समाज था। ऋग्वेद में कई बार पितृ शब्द का उल्लेख मिला हुआ है। हिज फैमिली इंक्लूडेड हिज ओल्ड पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, ऑल्सो फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन, द यंगर ब्रदर एंड देयर फैमिलीज। द फैमिली सिस्टम वॉज patriarchal, female
हालांकि वैदिक एरा में जो फीमेल की कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी थी सोसाइटी में। उस समय बाल विवाह जैसे कॉन्सेप्ट नहीं थे, पर्दा प्रथा का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा इट मीन्स उसके जो फीमेल होती थी उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसका फैमिली के किसी अदर मेल मेंबर के साथ उसे लाइफ रहने का और चिल्ड्रंस से अपने वंश को बढ़ाने का अधिकार प्राप्त होता था। विडो री मैरिज हुआ करता था। देयर वॉज अ नियोग सिस्टम ऑल्सो एंड चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करता था, पर्दा प्रथा नहीं था। और जो फीमेल का एजुकेशन है उसको बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इम्पॉर्टेंस प्राप्त था। उस समय लोपा, मुद्रा, घोषा, पाला ये वो फीमेल्स के नाम हैं जिन्होंने ऋग्वेदिक ऋचाओं को लिखने में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा दिया था। Then economic life, agriculture was the main occupation during the Vedic period till now in India. In Vedic era also, the main occupation was the agriculture. Many oxen were yoked together, plugged and field, then plugged had iron, plugged shears. जो खेतों में जो है वो खेतों को जोतने का काम किया जाता था। जौ वगैरह उस समय के मुख्य जो हैं वो खाद्यान्न हुआ करते थे। मैंने ग्रेनरी यूज़ होती थी। हॉर्सेस, काउ, डॉग्स हैज़ स्पेशली हैज़ इम्पोर्टेंस एंड दे यूज़ एज अ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो इन वैदिक एरा। When we talk about the caste system, जो कास्ट सिस्टम था वैदिक एरा में, स्टार्टिंग में कास्ट सिस्टम जिस तरह से हम देखते हैं वो नहीं था, बल्कि दैट वाज बेस्ड ऑन द वर्क। A person who do any work that called according to that character, just like अगर कोई पूजा कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, तो he or she will call comes in पुरोहित। अगर कोई रक्षा से, डिफेंस से रिलेटेड जो लोग वर्क करते थे वो राजा वाले वर्क में आते थे। थर्ड वन, जो लोग ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़े हुए थे वो वैश्य में आते थे। जो अदर फैसिलिटीज़ लोअर वर्क करते थे दे कम्स इन अ शूद्रा सिस्टम। सो और एनीवन कैन चेंज देयर कास्ट in a Vedic era. So caste was not on the basis of birth, that was on the basis of work. This is the very important characteristic we found in the Vedic era. This is the basic origin of our caste system. Basically all the people, there is no restrictions about caste. Yeah, when you change your work, then and according to work your caste will change automatically in this period. लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड में था, जो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क को ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ कर दिया गया। इट मीन्स जो कास्ट सिस्टम था उसे बहुत ज़्यादा रिजिड कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति जैसे ही अपने वर्क को तो वो बदल लेता था लेकिन उसकी कास्ट नहीं बदलती थी। इट मीन्स ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही कहलाएगा। कास्ट सिस्टम में ये रिजिडिटी और ये डीमेरिट्स जो है वो लेटर वैदिक पीरियड से आ गया, जो आज भी आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमको मिटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। The third one characteristic in Vedic era that is most important, that is political. In the Vedic period, each village has had known as a Gramini. जो सिस्टम था वो पैट्रियार्कल था। एक बहुत सारी एक फैमिली के हेड को, पूरी फैमिली को मिलाकर कुल कहा जाता था एंड कुल का जो चीफ होता था वो कुलप कहलाता था। द सिस्टम वॉज डिवाइडेड, हैव प्रॉपर हायरार्की, दैट इज़ द जस्ट लाइक कुल, ग्राम, विश एंड जन। द नंबर वन इज़ कुल। The number one was Kul, then Gram, third one is Vish, and fourth one was Jana. Now see, Kul was a group of family. The head of the Kul was called Kulap, and Gram was the group of Kula, and head of the Gram was called Gramini. And Vishap was the group of Gram, and head of the Vish was called Vishpati, and Jan was the group of Vish, and Jan, head of the Jan was Jan Raja, ये जनस गोपा। जो कुल होता था उसका हेड कुलप कहलाता था। देन द ग्राम का हेड ग्रामीणी कहलाता था। विश का हेड बृहस्पति कहलाता था और जन का हेड जनपति कहलाता था। ये जनस गोपा राजा कहलाता। कुल, ग्राम, विश और जन एक हायरार्की पॉलिटिकल सिस्टम में
चलता था। और स्टार्टिंग में जो राजा का कॉन्सेप्ट ना होकर कुल ये जो है वो कबीले के फॉर्म में पॉलिटिकल सिस्टम वैदिक एरा में था, जो आगे जा कर के वो कबीला ही आगे डेवलप होकर इसके मेन पुलिस राज्य को जस्ट लाइक अ पुलिस स्टेट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उसका बेसिक काम था, और अपने कुल की अपने कबीले की रक्षा करना, जो आगे जाकर किंग के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और वही कुल जो आपस में ये लोग गाय के लिए लड़ाई किया करते थे, और वही जो गाय के लिए लड़ाई है, गाय अर्थव्यवस्था का मेन साधन था, और बार्टर सिस्टम उस टाइम पर जो है वो फेमस था। और जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो किंग था वो बेसिकली वो आगे जाके किंग का कॉन्सेप्ट लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप होता है। वैदिक काल में जो पूरी सोसाइटी थी वो कबीले के फॉर्म में था, और कबीले का हेड ही जो सरदार होता था वही आगे जा कर के जन या जनस्य गोपा के फॉर्म में डेवलप होता है। And now we will focus on comparative study of early and later Vedic period. Here I mentioned that early Vedic society and later Vedic society, so we will easily compare between two. What was the characteristic in early Vedic era and what is the main characteristic in society in later Vedic. As we can see that early Vedic period में joint family जो system जो है वो देखने को नहीं मिलता है, जबकि joint family system बहुत डेवलप फॉर्म में विथ वर्ण व्यवस्था के साथ देखने को मिलता है हमको लेटर वैदिक पीरियड में। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया बहुत जो है वो कबीले के फॉर्म में सोसाइटी हुआ करती थी, और सोसाइटी क्योंकि जो कबीले के फॉर्म में डेवलप थी वो आकर के प्रॉपर आज जिस तरह हम जॉइंट सिस्टम फैमिली का देखते हैं वो हमको 1000 BC के बाद जब भारी मात्रा में आयरन के इन्वेंशन के बाद जो है स्प्रेड हुआ है लेटर वैदिक पीरियड में, उस समय हमको देखने को मिलती है। मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि अर्ली वैदिक एरा में जो फीमेल का स्टेटस था वो इक्वल था, वीमेन एंजॉयड इक्वल स्टेटस, फीमेल की कंडीशन बहुत अच्छी होती थी, जनरली एक ही विवाह हुआ करते थे, बहु विवाह का सिस्टम जो नहीं था पर होता था। लेकिन साथ ही साथ जो वीमेन जो थी उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा था, और किसी भी तरह का इनइक्वालिटी जैसे सिस्टम बहुत कम सोसाइटी में देखने को मिलते थे, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज़ें भारी मात्रा में देखने को मिलती हैं। जैसे लेटर वैदिक पीरियड में जो फीमेल थी इंडिया में उसका जो स्टेटस है उसमें डिक्लाइन आ गया। हम देखते हैं जैसे कि लेटर वैदिक इस तरह से जब एक वैदिक पीरियड में जो फीमेल का थोड़ा सा अच्छा वो मेल के बराबर से यज्ञ वगैरह में बैठा करती थी और काफ़ी अच्छी कंडीशन थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो है जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उनकी कंडीशन में डिक्लाइन देखने को मिलता है, और मुगलों के साथ ही डिक्लाइन नीचे की ओर कर्व गिरता ही चला जाता है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हम इस चीज़ को थोड़ा सा डेवलप करके वीमेन एम्पावरमेंट के बाद देख रहे हैं, तो ह्यूज डिफरेंस है वीमेन स्टेटस में। इसका रीज़न क्या था, यहाँ समझने की आवश्यकता है कि क्या कारण है कि वैदिक अर्ली वैदिक एरा में जो फीमेल की सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी थी, वही सिचुएशन लेटर वैदिक पीरियड में आकर गिर गई। लेटर वैदिक एरा में जो फीमेल की सिचुएशन में इस तरह से जो कर्व हमको गिरता हुआ दिखाई देता है, डिक्लाइन दिखता है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? एक्चुअली रीज़न बिहाइंड दिस वाज जो जैसे जैसे कबीलों ने आर्यंस ने अपने आप को आर्य मतलब श्रेष्ठ पुत्र द बेस्ट सन जिसके लिए कहा गया है, जो एक लैंग्वेज को स्टैंड करता था, लैंग्वेज की सुपीरियरिटी को स्टैंड करता था, जैसे जैसे आर्यंस और आर्य वैदिक एरा जो है वो इस्टेब्लिश होता गया, उसने अपने आप को ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर जो है उसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन घट गया। अर्ली वैदिक एरा में कबीला हुआ करता था, आज भी हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में हमको सेक्स रेशो देखने को मिलता है, बहुत अच्छी मात्रा में सेक्स रेशो कहीं भी आप ट्राइब्स में देखेंगे। क्यों? इसका रीज़न है कि ट्राइबल एरिया में फ़ीमेल का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन लगभग इक्वल होता है या मेल से ज़्यादा ही होता है, तो वहाँ पर कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, फीमेल को वहाँ पर बोझ नहीं माना जाता। लेकिन लेटर वैदिक एरा आते आते क्योंकि सोसाइटी थोड़ा डेवलप होती गई, कबीले की जगह एक जगह घर बनाकर लोग रहने लगे, तो फीमेल जो है उनका दायरा जो लिमिट है वो एक होम तक ही मतलब कि घर में डोमेस्टिक वर्क तक ही सीमित रह गया, जिस कारण से इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन में उनका मेल जो था वो लड़ाई के काम आता था, मेल इकोनॉमिक उपार्जन के काम आता था, इकोनॉमिक प्रोडक्शन के काम आता था, जबकि फीमेल सिर्फ घर तक सिमट कर रह गई। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जब से फीमेल का कम हुआ है, जो कि लेटर वैदिक से हुआ है, और वो इसलिए कम हुआ है क्योंकि जो खेत हुआ करते थे, जो फील्ड हुआ करती थी, उनका डिस्टेंस बढ़ने लगा। क्योंकि जो सिविलाइजेशन था वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, सारे के सारे सिविलाइजेशन है, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, मिस्र का सिविलाइजेशन हो, इंडस वैली हो, ये सारे किसी न किसी रिवर के बैंक पर हुए थे। और लेटर वैदिक पीरियड में भी जो मोस्ट सोसाइटीज़ बनी हैं वो कहाँ इस्टेब्लिश हुई हैं पूरे वर्ल्ड की, वो किसी न किसी रिवर के बैंक पर इस्टेब्लिश हुए हैं। रिवर और प्रोडक्शन यूनिट और होम, इनके बीच में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस, मतलब प्रोडक्शन यूनिट जो फील्ड हुआ करता था उस पर दूर डिस्टेंस ज़्यादा होने से फीमेल का जाना कम होता था, जिसके कारण से वो हाउस होल्ड वर्क में ज़्यादा उनको रखा जाने लगा, और जिससे उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन घटा। और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का सीधा सा परिणाम था कि अब उसे इकोनॉमिकली बर्डन माने जाने लगा, और इकोनॉमिकली बर्डन माने जाने के कारण लेटर वैदिक पीरियड में हम उसको डिक्लाइन देखते हैं। और लेटर वैदिक पीरियड में साफ साफ जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो फीमेल है, जो कन्या है, जो डॉटर है, उसको बोझ बताया गया है, उसके जन्म की निंदा की गई है, शोक मनाया गया है। और आगे जाकर स्त्रियों का, फीमेल का उपनयन संस्कार, जो लेटर वैदिक पीरियड में जो 16 संस्कार बताए हैं, जिसमें 16 संस्कारों में सबसे पहले गंधर्व संस्कार, सबसे पहले जो संस्कार है दैट इज़ गर्भधारण संस्कार, और लास्ट 15 नंबर का जो है दैट इज़ मैरिज का होता है, विवाह संस्कार, और सबसे लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार जो होता है। इसमें जो एक उपनयन संस्कार था वो फीमेल का बंद होने लगा, और उनको कहीं कहीं शूद्रवत भी बताया गया है, पुत्री जन्म की निंदा की गई है, काफ़ी डिक्लाइन मिलता है, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज होने लगा, विडो मैरिज जो है वो रोने लगा, क्योंकि विडो मैरिज अगर होगा तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र होगी इन फ्यूचर, इसलिए विडो मैरिज को रोकने लगे, फीमेल को एज अ बर्डन समझने लगे। आज भी हम देखते हैं कि इक्वल स्टेटस नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वालिटी देता है, मेल और फीमेल को इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वल स्टेटस देता है, फिर भी हमारी सोसाइटी जो है वो फीमेल को इक्वल स्टेटस आज भी कहीं ना कहीं नहीं देती है। इसी तरह का जो डिक्लाइन वाला फेज़ है इंडिया में, इंडस वैली में भी बहुत अच्छा था, अर्ली वैदिक एरा में भी अच्छा मिलता है, लेकिन लेटर वैदिक एरा से ये तेज़ी से डिक्लाइन होता है। और वो इसलिए डिक्लाइन होता है क्योंकि फीमेल का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो है वो घटने लगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अर्ली वैदिक सोसाइटी एंड लेटर वैदिक सोसाइटी में। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि कभी जो एजुकेशन में आप देखें तो गुरुकुल सिस्टम देखने को मिलता है हमें अर्ली वैदिक एरा में। जो गुरुकुल कॉन्सेप्ट था, आपने गुरुकुल मूवी भी आई है अमिताभ बच्चन की, और शाहरुख खान उसमें रहता है, आई थिंक मोहब्बतें उसका नाम है, आपने देखा होगा। उसमें एक बहुत रिजिड कॉन्सेप्ट बताया है उसमें गुरुकुल में, किस तरह से बच्चे एक डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, सुबह उठना, एक पूरी दिनचर्या का सिस्टम जो है उसका ओरिजिन स्टार्ट हो गया था अर्ली वैदिक सोसाइटी में, जिसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और भी ज़्यादा इनरिचमेंट हुआ है, इंस्टीट्यूशन में और ज़्यादा लॉ मेकिंग लगाया है, उसे और ज़्यादा कंटिन्यू फॉर्म में उसे इनलार्ज किया गया है, उसका जॉब वर्क इंस्टीट्यूशन एनहांसमेंट किया गया है लेटर वैदिक, मतलब उसको और अच्छा बनाया है। और आज हम मॉडर्न सोसाइटी और गए हैं, और आज कोविड-19 ने उसे ऑनलाइन की और एक ह्यूज मास तक कन्वर्ट कर दिया है, बहुत ही स्मार्ट बना दिया है। नेक्स्ट हम देते हैं कि जो रिजिड कास्ट सिस्टम जो है स्टार्टिंग में अर्ली वैदिक एरा में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि रिजिड कास्ट सिस्टम ये बताता है अर्ली वैदिक एरा में जो व्यक्ति जिस वर्क को करता था, कास्ट, उसकी जो कास्ट डिफाइन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। अगर आप पूजा का काम करेंगे तो आप पुरोहित कहलाएंगे, आप आर्मी का काम करेंगे तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, आप ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड कोई व्यक्ति कोई काम करता था तो उसे वैश्य कहा जाता था, और लेबर क्लास का और छोटा मोटा वर्क करता था तो उसे शूद्रास में रखा जाता था। ये सिस्टम था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क।
जो जिस काम को करेगा वो उस कास्ट में आएगा। जैसे ज्वेलर्स की शॉप, आज के समय में कोई भी ज्वेलर्स की शॉप खोल सकता है। अभी कई सारी गवर्नमेंट ने किया भी है कि आप एक पंडित का कुछ काम करने का 6 मंथ का डिप्लोमा करके पंडित बन सकते हैं। कास्ट से ब्राह्मण नहीं बन सकते, लेकिन कार्य से पंडित बन सकते हैं। ये सिस्टम जो रिजिड कास्ट सिस्टम, जो व्यक्ति जिस काम को करेगा वो उस कास्ट का कहलाएगा, ये सिस्टम था अर्ली वैदिक एरा में। जबकि लेटर वैदिक एरा में हमने देखा कि क्योंकि जो प्रीस्ट था, जो पुरोहित हुआ करता था और जो क्षत्रिय था, उसकी कंडीशन बहुत अपर थी। तो कुछ लोगों में ऐसा लालच आया कि हम दूसरे लोगों को इसमें ना आने दें, तो उन्होंने एक सोसाइटी बना ली, एक सिस्टम बना लिया। और लेटर वैदिक पीरियड में एक भारत के लिए अभिशाप कहा जाता है कि जो बहुत बिग एविल है कि एक पूरा कंप्लीट कास्ट सिस्टम डेवलप हो गया, जिसमें एक हायरार्की थी और आप उससे जंप नहीं कर सकते थे। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ पंडित का बेटा ही पंडित बनेगा, ठाकुर का बेटा ठाकुर बनेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, और एक शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा, वो ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं बन सकता। ये लेटर वैदिक सोसाइटी में इसके बारे में कई सारे मंत्र वगैरह लिखा जाने लगी, कई सारा धार्मिक इस दिशा में कार्य किया जाने लगा, और सोसाइटी ने इस सिस्टम को रिजिड कर दिया। अब कास्ट चेंज करना जो है वो आसान नहीं रहा। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। वो कास्टिसिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम रिपब्लिक बने, हमने आर्टिकल 17 में, आपको पता होगा, अनटचेबिलिटी के नाम से हम जिसे जानते हैं, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटली बैन करता है। इवन हमारे यहाँ उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट तक का प्रावधान है अनटचेबिलिटी के लिए। फिर भी प्रैक्टिकली सोसाइटी से अभी वो गया नहीं है, एक अभिशाप की तरह सोसाइटी में आज भी मौजूद है। इसको कैसे जाएगा? जितना ज़्यादा एजुकेशन स्प्रेड होगा वैसे ही इस तरह की चीज़ें दूर होंगी। अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, आप देखना चाहें तो, आर्टिकल 15 है ना, कास्ट, जेंडर, कलर, प्लेस, इसके बेस पर, रेसेस, किसी चीज़ के बेस पर किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को उसमें बैन बताया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता है। प्रॉपर पनिशेबल है, प्रॉपर SC/ST एक्ट हमारे यहाँ बना हुआ है, जिसमें प्रॉपर राइट हैं SC/STs एंड वीमेन को, तो उन्हें किसी भी तरह का अनफेयर बिहेव जो है उसको एक्सेप्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट दिखाई देता है अर्ली वैदिक एरा में। अर्ली वैदिक एरा में जो मेन जो ऑक्यूपेशन हुआ करता था अर्ली आर्यंस का 1500 BC टू 1000 BC, दैट वाज बेसिकली ऑक्यूपेशन वाज प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस वाज domestification of animals, and the secondary occupation was agriculture। जो स्टार्टिंग के अर्ली वैदिक आर्य थे, उनका पहला काम जो था वो पशुपालन था, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। देन सेकेंडरी था एग्रीकल्चर। लेकिन लेटर वैदिक में जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पर एग्रीकल्चर वॉज बिकम द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है UPSC में कि जो अर्ली वैदिक एरा था, आपको ध्यान रखना है, वैदिक एरा लिखा है कि अर्ली वैदिक लिखा है कि लेटर वैदिक लिखा हुआ है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वर्ड्स। तो अर्ली वैदिक एरा में उनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था जो आर्यंस का, दैट वाज डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल। देन लेटर वैदिक एरा में दैट वाज एग्रीकल्चर, and second was domestication of animal। कई सारे कैटल्स वॉज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ। गाय का जो है काफ़ी भारी मात्रा में जो है वो हम देखते हैं कि इसको इकोनॉमी का आधार माना जाता था। भारी मात्रा में लेटर वैदिक एरा में गाय को लेकर कई सारे वर्ड्स लिखे गए हैं, जैसे गोधुली आपने सुना होगा, और जो गोधुली संध्या जो गोधुली, जब गाय वगैरह जो काउस हैं वो शाम के टाइम पर, इवनिंग में जब रिटर्न होती हैं घर पर, दिन भर घूम करके घास वगैरह खा के, तो उसे संध्या गोधुली बेला कहा जाता है, गोधना कहा गया है ना। और साथ ही साथ अतिथि के लिए कुछ शब्दों का जो है वो गाय को लेकर गवेषणी, अन्वेक्षणा करना, रिसर्च करना,
या कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करना, इस तरह के कई वर्ड्स काऊ को लेकर के जो है वो इन्वेंट किए गए, क्योंकि काऊ जो है इकनॉमी का आधार हुआ करती थी। उसका 176 टाइम्स हमें जो है वो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। 176 टाइम्स जो काऊ को लेकर के वर्ड यूज़ किए गए हैं। और काऊ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। क्यों था इम्पॉर्टेंट? कोई भी किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस जो है उसके आउटपुट से डिसाइड होता है। आउटपुट क्या था काऊ का? उसका जो बेल हुआ करता है वो पूरी तरीके से हमें फार्मिंग में यूज़ होता था। उससे हमें दूध मिलता था, घी मिलता था, मठा मिलता था, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गाय से यूज़ हुआ करती थी। इसीलिए गाय को गोमाता जैसी संज्ञाएं दी गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इकनॉमी का बेस थी। कई सारे क्राफ्ट मिलते हैं, मैंने बताया पेंटेड ग्रेव वेयर जो है वो लेटर वैदिक एरा में जो यूटेंसिल्स और पॉटरी वगैरह मिली हैं, जिससे उस समय के हमें जो है वो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा डेवलप फॉर्म में पाए गए हैं लेटर वैदिक इकनॉमी में, जबकि वैदिक अर्ली वैदिक एरा में काफ़ी प्लेन जो हैं वो पॉटरीज वगैरह पाई गई हैं। हियर यू कैन सी दैट द वैदिक सोसाइटी, the caste system was divided into Brahmins, that comes priests, Kshatriyas, Vaisyas and Sudras. There are 4 hierarchy. The topmost number 1 position पर जो होती थी सोसाइटी में, ये कास्ट सिस्टम डेवलप हो गया था इन दी वैदिक सोसाइटी। देखिए डेवलप वैदिक सोसाइटी में अर्ली वैदिक पीरियड में हो गया था, बट इट कैन बी चेंज इन वैदिक एरा, इन अर्ली वैदिक एरा। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में यू कांट चेंज इट, इट बिकम परमानेंट, है ना। तो देखिए जो सबसे पहले आपको इमेज में भी दिख रहा है, प्रीस्ट का दिख रहा है, क्षत्रिय का दिख रहा है, शूद्र का दिख रहा है और वैश्यास का दिख रहा है। तो नंबर 1 ब्राह्मण्स को रखा गया था, नंबर 2 पर क्षत्रिय, नंबर 3 पर वैश्य। कहीं कहीं वैश्यों को शूद्र के बराबर तक रख दिया गया। यही कारण है कि लेटर वैदिक पीरियड में जो देवी देवताओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वैश्यास को कई जगह 4th नंबर पर भी रखा गया। दैट्स वाई बहुत सारे 62 अराउंड इंडिया में मूवमेंट हुए हैं इंडियन रिलीजन्स के, हिंदू रिलीजन्स के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्मकांड, पूजा पाठ, देवी देवता लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और उसमें जो वैश्य क्लास था, एक पावरफुल क्लास था, उसको वो प्लेस नहीं था जो उसे मिलना चाहिए। ये क्षत्रियों से नीचे आते थे, जबकि इकोनॉमिकली काफ़ी पावरफुल होते थे। और कहीं कहीं इनको वैश्य के, शूद्रास के बराबर रख देने से वैश्य जो हैं वो जो हैं उनमें अनरेस्ट था। दैट्स वाई कई सारे मूवमेंट हुए और भारी मात्रा में वैश्य ने उसको, वैश्यों और शूद्रों ने ड्यू टू अनइक्वालिटी, ड्यू टू इस कास्ट सिस्टम से इसको ज्वाइन किया। पर कास्ट सिस्टम में देयर वॉज 4 वर्ण हुआ करते थे, देयर वॉज 4 वर्ना। द नंबर 1 वर्ना वॉज ब्राह्मण्स, and only priest comes in this varna. The second one the second one position in this hierarchy was kshatriya, warriors, आप आजकल सुनते होंगे कोरोना वॉरियर्स, एंड थर्ड वन वॉज वैश्यास एंड 4th वन वॉज शूद्रास। जो शूद्रास होते थे वो सबसे नीचे पोजीशन पर आते थे। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए इन वैदिक सोसाइटी। कई बार ये सीक्वेंस आपसे ऑब्जेक्टिविटी में पूछ लिया जाता है। When you see the family is also the part of social characteristic of Vedic and later Vedic period. When we talk about the family, I earlier explained this. The starting में कबीला का सिस्टम का था, जो आगे जाकर के डेवलप हो गया। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है दिखता है। ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल। काफ़ी 335 टाइम्स हमको जो फादर, पितृ शब्द का उल्लेख मिलता है तो सोसाइटी में। जबकि इंडस वैली में भारी मात्रा में जो है वो जो डांसिंग गर्ल मिली हैं, उससे लगता है कि सोसाइटी इक्वालिटी और फीमेल ओरिएंटेड भी हो सकती है। हालांकि हिस्टोरियन में इस पर डिस्प्यूट है कि इंडस वैली में सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग थी कि पैट्रियार्कल थी, इस पर डिस्प्यूट है। पर जो वैदिक एरा में पैट्रियार्कल थी पूरी तरीके से। ज़्यादा समय पितृ शब्द का उल्लेख मिलता है, पितराज शब्द का उल्लेख मिलता है। और गृहपति जो होता था दैट वॉज कॉल्ड द हेड ऑफ फैमिली। कुल, ग्राम, वंश और जन, आई अर्लियर मेंशन दैट कुल जो हुआ करता था, ग्रुप ऑफ फैमिली को मिलाकर के कुल बनता था। कुल का चीफ कहलाता था कुलपति, ग्राम का ग्रामपति, वंश का वंशपति और जन का
जनस्य गोपा या राजा, यही कुल ग्राम विश्व जन से राजा का कॉन्सेप्ट बना लेटर वैदिक में। और जो कबीले का सरदार था वो एरिया के साथ जब जुड़ गया और ज़्यादा डेवलप हो गया, आयरन का इन्वेंशन हो गया, तो वही सोसाइटी जो स्टार्टिंग में एक ग्रामीण सभ्यता थी, है ना, जो पूरी तरीके से रूरल सोसाइटी थी, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर लेटर वैदिक में आयरन भी इन्वेंट हो जाने से बहुत तेज़ी से डेवलप होती गई। और वही सोसाइटी आज के आप देखते हैं कि स्टेट के फॉर्म में डेवलप हो गई और कबीले का सरदार राजा बन गया। कई बार आपने सुना होगा सूबे के मुखिया ने कहा, ये सूबा शब्द मेडिवल हिस्ट्री से हमें देखने को मिलता है। तो ये जो क्षेत्र का प्रधान था, यही कुल से, ग्राम से, विश्व से, जन से, कबीले के राजा नेता से डेवलप होते होते जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में हमको एक प्रॉपर राजन या राजा शब्द में हो गया, जिसके लिए अलग अलग नाम यूज़ होते थे। जैसे कि हम देखें उस समय लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे जो उत्तर भारत में जो किंग हुआ करता था उसके अलग नाम होते थे, जो ईस्ट में होता था, साउथ में होता था, जो मिडिल में होता था, जैसे कि सौराठ जो है सम्राज है, राजा है, भोज है और स्वराज है, अलग अलग महाराजा अधिराज है। इस तरह की जो है आप अलग अलग टर्मोलॉजी मिलती है। सॉरी, महाराजा अधिराज जैसे शब्द गुप्त काल में मिलते हैं। यहाँ पे सौराठ, स्वराज और भोज और राजा जैसे शब्द हमको और स्वराज्य पश्चिम भारत में हमको देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग वर्ड हैं जो किंग के लिए ही यूज़ किए गए हैं। उसमें बेसिकली जो एक और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस एरा में, लेटर वैदिक पीरियड में राजा के लिए कुछ डेमोक्रेसी जैसे सिस्टम इंडिया में इस समय यहाँ पर डेवलप हो गए थे। जैसे सभा, समिति, विधत, गोपथ, ये वो संस्थाएं थी, जैसे कि आप समझ लीजिए जहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा जैसे छोटे छोटे डिस्कशन हुआ करते थे। सभा में जैसे कि ओल्ड पीपल, एक ग्राम के ओल्ड पीपल रहा करते थे, समिति में यंगस्टर रहा करते थे, विधत थी, गोपथ था, गोपथ में जस्टिस का काम करती थी जैसा कि हमारी जुडिशरी करती है। और जो किंग लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप हुआ था वो सभा, समिति, विधत, गोपथ, विधत जैसी संस्थाओं का समर्थन पाने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए वो जो है वो हमेशा बहुत इच्छुक रहा करता था। मतलब उनकी डेमोक्रेसी जैसी जो सोसाइटी, जो इंस्टीट्यूशन बने थे, जैसे कि कबीले का सरदार भी है तो कबीले में सबकी सहमति, कुछ ना कुछ सहमति हमेशा रखना उसके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो लोग उसे सरदार के पद से हटा देंगे। तो लेटर वैदिक में जो किंग बन गया था उसके लिए ज़रूरी हुआ करता था कि वो जो सभा, समिति और विधत जैसी संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, सभा, समिति, विधत, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वाज अ बेसिक सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, दैट वाज सीन इन लेटर वैदिक एरा। बहुत ज़्यादा उसमें वो उनके सपोर्ट लेना चाहता था। बहुत समय पहले, कुछ समय पहले एक बहुत अच्छी मूवी आई थी मोहनजोदारो, उसको देखिएगा। उसमें बताया है कि जो कबीले का सरदार है वो आसपास के लोगों से मीटिंग करके, हैंड रेज करा के, उनका सपोर्ट लेकर के किसी डिसीजन को लेता है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है लेटर वैदिक पीरियड में। और इंस्टीट्यूशन जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का जो है पूरा उनको मेजॉरिटी होना चाहिए, किसी भी डिसीजन को अकेले मोदी जी नहीं कर सकते हैं। तो जो मेजॉरिटी है वो डेमोक्रेसी को बताती है। तो लेटर वैदिक में इतना डेवलप हो गया था कि सभा, समिति, विधत जैसी संस्थाएं देखने को मिलती हैं जिनका सपोर्ट पाना किंग के लिए ज़रूरी होता था। ये ओरिजिन हो चुका था इंडिया में डेमोक्रेसी का। पोजीशन ऑफ वीमेन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, एंड कास्ट सिस्टम ऑल्सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। Gurukul and education system I already explained. So I think so that it is enough to about Vedic and later Vedic era. इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ इस पर सॉल्व करना चाहिए। देखिए, पढ़ा एक लिमिट तक जाता है, उसके बाद जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट लेवल जो है किसी भी टॉपिक पर वो क्लियर होता जाएगा। जितने ज़्यादा MCQ प्री में निकालने के लिए किसी भी कॉम्पिटिशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, MCQ बेस्ड है, यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर MCQ। जितना ज़्यादा MCQ जो है आप सॉल्व करेंगे आप उतने ज़्यादा सिलेक्शन के पास होंगे। मेंस में जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे उतने ज़्यादा सिलेक्शन के आप पास होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि एक बार किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद, 2 बार पढ़ने के बाद, उसे लिखने के बाद, थॉरो करने के बाद उस पर MCQ लगाइए। देन फिर भी गलत होंगे, देन उसका रीज़न जो है वो फाइंड आउट करिए। देन कॉन्सेप्ट आपका जितना ज़्यादा इसको करेंगे उतना आपका क्लैरिटी लेवल बढ़ता जाएगा। यही सिस्टम होता है किसी भी MCQ बेस्ड एग्ज़ाम को निकालने का। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।